Hi, welcome. Good morning, everyone. Good morning. Very Very happy good morning. Good morning. morning. Have a magical morning Good to all. morning. Yeah, it is already a magical morning. Always. Yeah. So today we are starting afresh with chapter number 1, which is our day 1, count your blessings. And this is a lifelong practice now. So हमको बहुत diligently इसके बारे में सोचना है, सुना है, because this is very clear. This I've been experiencing that, to change any situation, just put gratitude, like there was such a rigid situation at my work, which was just not moving. All I thought, पहले मैंने बहुत struggle किया, and then I thought that let me just pour and shower it with gratitude. Okay, and then the whole situation has gone, मतलब totally changed, transformed. So this is what is about the like blessings जो हम देते हैं अपनी किसी भी चीज को. So count your blessings. So more and more you count your blessings, more and more the life keeps expanding and opening up. And इसमें image में, as we can see, it's a morning light. Fresh flowers on the table. There is a coffee mug, morning coffee or morning tea, whatever. And there is a journal with a pen. That means we have to write it, okay? So it signifies that we early in the morning, as soon as we wake up, first thing we have to write, count our blessings. That's what the chapter's name is. और इसके लिए हमको एक ऐसे ही जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोई भी नोटबुक, स्पाइरल बुक, बच्चों की जो कॉपीज होती हैं, कुछ भी आप एक वो बना लो अलग से, जो आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल होगा, उसको ग्रैटिट्यूड जर्नल बोलते हैं. स्पाइरल नोटबुक बहुत हैंडी होती है और उसमें रोज हमको अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है, जो भी आप करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑल द असाइनमेंट जो हमको बीच बीच में मिलते रहेंगे. बहुत सारे असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो लिखने वाले मिलेंगे, एटलीस्ट टिल अबाउट चैप्टर 12 हमको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा. सो लिखने वाले असाइनमेंट्स हैं. आफ्टर दैट इट विल बी मोर विजुअलाइजेशन. So make this gratitude journal, and every day now we have to count our blessings as the first thing in the morning. And let's read this chapter. Neeti, would you? Yes, ma'am. Please Yeah. start. Day 1, count your blessings. When I started, quote, when I started counting my blessings, my whole life turned around. By Willie Nelson, 1933. B. 1933, singer, songwriter. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. The flip side is that when we're not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life.
Quote, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles, by Maltby D. Babcock, 1858 to 1901, writer and clergyman. First thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have dash because dash. I am so happy and grateful for dash because dash. I am truly grateful for dash because dash. With all my heart, thank you for dash because dash. After you finish making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear,
your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue on to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic practice number 1: count your blessings. Number 1 is, first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2, write why you are grateful for each blessing. Number 3, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for the blessing as much as you possibly can. Number 4, repeat the first 3 steps of the magical practice every morning for the next 27 days. Number 5, read tomorrow's magical practice today. Thank you so much, Neeti, for reading so slow and carefully and so nicely. Thank you. you. Thanks. आराम से पढ़ रहे थे तो वो बहुत दिमाग में penetrate हुआ सब कुछ. So yeah, thank you so much for that. So going back to the beginning of this chapter, which is like chapter number 1, which says that when I started counting my blessings, my whole life turned around. And this comes from the singer and songwriter. So because हम mostly dwell करते हैं complaints में या lack में, मतलब इनएडवर्टेंटली हमको पता नहीं होता है कि हम ऐसे सोच रहे हैं, बट हमें हमेशा ये लगता है कि काश मेरे पास और पैसा होता, काश मेरे पास ये होता, वो कितनी अच्छी वैसी लग रही है, वो कितनी पतली है, मेरा वेट वैसा क्यों नहीं है. I wish like I had like long hair, I wish I had curly hair, I wish I had straight hair, I wish ऐसा हो जाए, I wish that मैं इतना पैसा रिसीव करूं, I wish that वो घर मेरे नाम से हो जाए. This is how we live all our lives. And of course, there is no harm in having the desires. Having the desires are very important, but desires have to have excitement, not lack.
अगर डिजायर के आपको सोचने पे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नहीं है या उसकी कमी लग रही है, तो इसका मतलब है दैट डिजायर विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ मोर एंड मोर. बट इंस्टेड इफ यू फील एक्साइटमेंट दैट वाओ, you know, when I have it, I'm going to feel so good. You know, when I lose my body weight, I'll be of a perfect health. I'll wear this, I'll buy this, I'll do this, I'll wear a lehenga, I'll do this, and you know, like sari mein I'll look really nice because I'll be so slim and toned. So all that you have to think. Excitement में मतलब of course desire के साथ अगर lack का आ रहा है that yes I do not have, that means that that thing is going to go away from your life, आपकी जिंदगी से दूर जाता जाएगा. Instead अगर जो चीज का desire है उसके बारे में हमको खुशी है, हमको बहुत ज्यादा रोमांचक लग रहा है, सोच के उसके बारे में खुशी अंदर से महसूस हो रही है, तब वो डिजायर हमसे चिपकू हो जाएगा, चिपक जाएगा. So that is what it is, counting my blessings. So we have to count the blessings every day. अब रोज सुबह जब हम सो के उठेंगे, सबसे पहली चीज, जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेक रहता है और कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग स्टेट में होता है, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं. और वो दिन में 2-3 बार होती है, मतलब हम क्रिएट भी कर सकते हैं अल्फा स्टेट को, बट मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं तो वो वैसे भी होती है. तो अपना मुंह बंद ही रखेंगे हम सुबह सुबह. अगर आपने बातें करना शुरू कर दिया, फिर आप वो मतलब वी गेट इनटू बीटा स्टेट होता है जब एनालिटिकल माइंड आपका जाग जाता है. और फिर जितना ज्यादा सोचते हैं, अरे आज मेड को लेट आ रहा है, ओ आज तो बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं किचन में, बहुत बहुत जगह ले रहे हैं और स्मेल आ रही है, किचन कितनी गंदी हो रही है, मेरे चप्पल कहाँ गए, यू नो लाइक मुझे ये करना है, अच्छा आज तो ऑफिस का वो वाला काम है, ओ आज गीजर किसने ऑफ कर दिया. सो अगर ये वाला दिमाग शुरू हो जाता है ना सुबह, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन बीटा. तो अब वो अल्फा स्टेट माइंड शटडाउन मोड पे हो गया है, बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑफ द थिंग्स टू डू इन द डे, और यू नो छोटी छोटी चीजें. सो इंस्टेड जैसे ही हम सो के उठते हैं, बी क्वाइट, इमीडिएटली ओपन योर जर्नल. सबसे पहली चीज, स्टार्ट योर डे जब आप अल्फा स्टेट में ही होते हो, बाय राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स. लैंग्वेज उसमें बता दी है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या फिर विद ऑल माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल. ओके, सो 2-3 चीजें हैं जो चैप्टर में ऑथर ने समझाई है. पहला बताया है, यू कैन डायरेक्ट योर ग्रैटिट्यूड टू समवन, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू द सन, आई एम सो ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्णा और कृष्णा जी, जो भी आप बोलते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू लॉर्ड शिवा. अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रैटिट्यूड किसी को डायरेक्ट करने की वजह से स्ट्रेंथन हो रहा है या उसमें कोई शक्ति या पावर आपको नजर आती है, तब आप करो. I don't do it. I just write that I'm truly grateful that this, you know, this is how I write. So I'm truly grateful. I don't direct it to anyone. मुझे वैसे भी फीलिंग आ जाती है आराम से, बिना किसी को डायरेक्ट किए. ठीक है, सो आपका अपना है सबका, उस हिसाब से हम कर सकते हैं. Ma'am, can we And direct with it to a person? Can we direct it to a person? Like, I'm grateful, I'm truly grateful to like my mom for this. Of course, you can write that. And because also, I'm truly grateful to my mother because she brought me up with so much care. You know, I'm truly grateful to my mom because she really looked after me, you know, especially when I was not well. She would actually wake up and look after me. I'm truly grateful. So, of course, it would be great if you can direct it to parents. That's always a source relationship. And they say that अगर जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही है तो go back to correcting your source relationship, जहां से आप आए हो. अगर वहां पे गड़बड़ है तो आपका पूरा आगे गड़बड़ ही रहेगा. So yeah, you can direct it to mother, your father, your grandmom, maternal side, paternal side, anyone. And but you have to write because मतलब ये बहुत जरूरी होता है कि आप कारण लिखें. इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप लिख रहे हैं that I'm truly grateful to my mother, you know, because that she did all these things for me. और आज एक लिख लो, कल दूसरा लिख लेना. बहुत सारी मम्मी ने तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए की है, हमको पढ़ाया लिखाया है, हमारा ध्यान रखा है, हमारे क्लोथ स्टिचिंग को दिए हैं, हमारे लिए जाके शॉपिंग करी है, हमको नरिशिंग फूड बना बना के खिलाया है, और हमारी मनपसंद का खाना, हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करी हैं, हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, घर डेकोरेट कराया होगा, हर बार बड़े होते तो नए नए शूज लिए हैं. तो सब कुछ एक दिन में नहीं लिख के आप अलग अलग भी लिख सकते हो. सो टुडे यू राइट अबाउट दिस एंड देन राइट अबाउट योर फादर्स. फादर्स डोंट एक्सप्रेस लव, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोचते हैं.
है ना, बच्चों के बारे में और उनके लिए उनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में। तो फादर्स के लिए भी लिख सकते हो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई फादर बिकॉज ही वुड इवन पॉलिश माई शूज। I'm truly grateful to my father because he would drop and pick me up. I'm truly grateful to my father because he earned a lot of money, which sustained the whole family, and he worked so hard for so many years. So I'm truly grateful to my father because he would drive me around or whatever, like जो भी आपको याद है आप वो लिख सकते हैं। और ये 10 ब्लेसिंग्स हमको टोटल लिखनी है रोज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। Of course, you can write 20, 30. I also start my day by writing about 60 of them. लेकिन 10 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर मैं 60 भी लिखती हूँ तो उसमें से जो 10 होते हैं उसमें ऊपर टाइटल डालती हूँ मैं काउंट माई ब्लेसिंग्स। Date, I put today's date and say a Saturday. And then I write point number 1. I'm truly grateful that I have life because, and I know that I can enjoy, I'm born as a human and I can create and I can learn and I can, kind of decide my future, write the script of my life. Who knows that, we know that it's such a wonderful thing to know. So I'm truly grateful to the Mother Earth for, bearing so many trees and plants and flowers, that gives out oxygen and also nourishes us with the food. Then I'm truly grateful to the sun because it gives us heat and light. I'm truly grateful to my cell phone because it connects me to the world. I'm truly grateful to YouTube because I can read and update myself and also entertain myself with music. I'm truly grateful to my writing skills because I can write my blessings and do all my office work and personal work. I'm truly grateful to my driving skills because that gives me freedom of mobility. I'm truly grateful, to the gas burners I have in my kitchen on which I cook the food. I'm truly grateful to the refrigerator because it keeps my food very, very fresh. So there is a because after everything. हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ इस चीज का क्योंकि, इसलिए करती हूँ क्योंकि। तो क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये हैं सारे। ऑफ कोर्स रोंडा बर्न को हमको एस्पेक्ट समझाने पड़ेगी कहाँ कहाँ पे वो हमको बता सकती हैं कि हेल्थ के सेक्टर में लिख सकते हो, बट ये रैंडम चीजें हैं। मतलब ये काउंट माई ब्लेसिंग्स जिस भी चीज के लिए हमको पता नहीं है, हमारे पास घर है, हमारे पास छत है, हमारे घर की खिड़की दरवाजे हैं, हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अपनी मिक्सी को थैंक यू बोलो, अपने आरओ सिस्टम को थैंक यू बोलो, ठीक है, जो भी आपके पेन पेंसिल होते हैं उनको थैंक यू बोलो, अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को थैंक यू बोलो, ठीक है, अपनी आंखों को थैंक यू बोलो, अपने बालों को बोलो, अपनी सेहत को बोलो, अपने सेल्स को बोलो, अपने ऑर्गन्स को थैंक यू, ठीक है, घर में जो इतनी अच्छी फ्लोरिंग है उसको थैंक यू, सारे जो क्लोजेट्स हैं, कबर्ड्स जो घर में किचन में कबर्ड्स हैं, हर जगह पे बाथरूम में हो सकते हैं, आपके बेडरूम में कबर्ड्स हैं, उनको थैंक यू बोलना, जो कपड़े हैं हमारे पास पूरी वार्डरोब उनको थैंक यू, जो शूज हैं उनको थैंक यू, अपने कोम्ब को थैंक यू, मेकअप किट को थैंक यू, अगर आपके पास लिपस्टिक्स हैं और जो भी है सामान मेकअप करने का उसको थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू। तो मल्टीपल थिंग्स हैं हमको ग्रैटिट्यूड करने के लिए, और जितना ज्यादा हम सुबह सुबह डिलीजेंटली सुबह उठते से ही ब्लेसिंग्स लिखेंगे, काउंट माई ब्लेसिंग्स, आप देखोगे आपकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो गई है। बिकॉज फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर डे आप पूरे इन्वॉल्व कर रहे हो उसको, मतलब सिर्फ थैंक यू और ब्लेसिंग्स काउंट करने में। शुरू में आपको याद नहीं आएंगे, धीरे धीरे मतलब ऐसी ऐसी चीजें याद आने लग जाती हैं कि आप अपने बटन को भी थैंक यू बोलते हो। इमेजिन अगर हम कोई शर्ट अच्छी सी पहन के गए विच इज लुकिंग रियली नाइस और उसका मेन बटन ही एक टूटा हुआ है ना, मतलब कितनी अहमियत होती है बटन की भी, हमने अपने बटन्स को कभी थैंक यू बोला नहीं है, ठीक है। सो हमने ब्रांड्स को, ऑनलाइन एप्स जो होते हैं उबर और ओला और जो भी ज़ारा, मैं तो ज़ारा ऐप से इतनी शॉपिंग करती हूँ, सो लाइक ज़ारा ऐप को, ऑनलाइन शॉपिंग के जो पोर्टल्स हैं अमेजोन और नाइका और व्हाट एवर इट इज, आजियो लक्स, तो इन सबको थैंक यू बहुत सारा बोलना। दे मेक लाइफ सो इजी फॉर अस। अपने टेलीविजन को थैंक यू, लाइक जो चार्जिंग पॉइंट्स और पोर्ट्स हैं उनको थैंक यू। तो इतनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में है ग्रैटिट्यूड करने के लिए, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन मोड में ही रहते हैं, है ना, कि ये नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है या ये और चाहिए, मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है, इस तरह से।
सो ये बस आज की प्रैक्टिस है और अब लाइफ लॉन्ग का प्रैक्टिस है. अब एवरी डे वी विल नीड टू डू दिस. Okay, so and this is how it is to be done, and we will see that ये लगती बहुत छोटी सी चीज है, but it will start turning around your whole life, you know. छोटी छोटी चीजों में आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में जादू भरता जा रहा है, और ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है, बट तरीके से करना पड़ता है. अब ये सारे हमने 10 पॉइंट्स लिखे इसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे बताया है, बिकॉज कर करके. नाउ 10 लिख के गो बैक टू पॉइंट नंबर 1, उसको रीरीड करो. ठीक है, अगर घर में कोई आसपास है तो मन में रीड करो. इफ अगर आप अकेले हैं तो आप उसको आउट लाउड रीड करो. आउट लाउड आवाज के साथ रीड करने की बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत पावरफुल उसमें वो फीलिंग हमारी अंदर चेंज होती है, सेलुलर लेवल तक वो पहुंचता है. तो अगर आप रीड कर सकते हो अपनी आवाज निकाल के, तो फिर से पॉइंट नंबर 1 को आप रीड करो, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है. ये मैंडेटरी है. ठीक है, मन में बोलना है या आउट लाउड बोलना है, कोशिश करो आउट लाउड बोल पाओ. ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पूरा आप रीड करो जो आपने लिखा है, और फिर 3 बार डाउनलोड करो. इसको डाउनलोडिंग बोलते हैं हम. तो जैसे एक तो होता है कि नेटफ्लिक्स पे आपने मूवी देख ली, एक होता है अब उसको डाउनलोड कर लिया आपने. तो डाउनलोड कर लिया तो अब आपके डेस्कटॉप में वो परमानेंटली वहां पे रहेगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर दोगे. ठीक है, तो पहली बार हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं जो हमने 10 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद जब 3 बार हम उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के सील कर रहे हैं, इट इज साइन सील स्टैम्प उसके बाद, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट. फर्स्ट यू हैव टू राइट इट एंड देन यू हैव टू रीड इट अगेन एंड से थैंक यू 3 टाइम्स एंड सॉलिडिफाई इट. ओके, सो सारी ब्लेसिंग्स को हमको लिखते हैं, डेफिनेटली वो थोड़ी फ्लूइड होती है, लेकिन रीरीड करके 3 बार थैंक यू बोल के हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं. तो ये करना मैंडेटरी होता है, एंड दैट इज हाउ, एंड वी विल सी दैट जिन जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो ना, आपकी जिंदगी में बाकी की चीजें भी आती जा रही है. तो इसमें लिखा हुआ है दैट अगर आप जो पैसा आपके पास है अगर उसके लिए ग्रेटफुल होगे, आप देखोगे कि जादू से द मनी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन योर लाइफ. अगर जो रिलेशनशिप आपके पास है, ठीक है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, रिलेशनशिप तो है ना, ठीक है, ऑन पेपर्स है और व्हाटएवर इट इज, इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट, यू विल सी दैट मिरेकल उस रिलेशनशिप में होने लग जाएगा एंड इट विल बिकम रियली वंडरफुल. अगर जो जॉब है आपके पास, कैसा भी है, जॉब तो है ना, देयर आर सो मेनी पीपल जिनको इतने सालों से जॉब नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने इतना अप्लाई किया है, बट अगर आपके पास वर्क है, बिजनेस है, आपका कोई भी कंपनी का नाम है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड आप करोगे, तो यू विल सी दैट यू विल लैंड अप टू योर ड्रीम जॉब. ओके, एंड या फिर करंट जॉब में सिचुएशन ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके साथ ये हुआ. ठीक है, एंड यू विल सी कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास लाइफ में आने लग जाएंगी. इंस्टेड अगर आप नेगेटिव चीजें काउंट करोगे और वो सब करोगे जो आपके पास नहीं है, क्रिटिसाइज करोगे, फाइन फॉल्ट करोगे, कंप्लेन करोगे, कितना ट्रैफिक है, कितनी गर्मी है, इतनी जोर से बारिश हो रही है, पूरा पानी भर गया, यू नो, पैसा नहीं है मेरे पास, वेदर कितना खराब होता जा रहा है, बहुत पोल्यूशन है दिल्ली में, यू नो, इतना डिले होता है, वहां पे बहुत लाइन लगानी पड़ती है, वीजा ही नहीं मिलता है, बिल्कुल वीजा के लिए इतने इतने दिन वेट करना पड़ता है. अब आप वेट करके देखो आपके साथ क्या होगा. जिन जिन चीजों के लिए आपने कंप्लेन किया है ना, वो बहुत ज्यादा होंगी. ठीक है, और वो और ज्यादा होने, यू नो, लाइक इतना ब्यूटीफुल ये होता है दैट अगर आप सन को रोज थैंक यू बोलो ना, आप देखना आप उसके नीचे खड़े हो जाओ ना, आपको टैनिंग नहीं होगी 1% भी. मतलब इतना मिरेकल की तरह ये वर्क करता है. वी हैव सीन सो मेनी पीपल, अगर आप रोज सन, सनलाइट, इट इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स, नो, जो एलिमेंट ऑफ फायर है उसका सिंबल है ना सन. तो अगर आप सन के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, आप देखना आपको कभी टैनिंग नहीं होगी. And more you go out in the sun, you know, your complexion will be brighter, like, you know, it is so beautiful. So that's what it says. With every negative thing we count, we cancel the blessings that were on the way. मतलब अगर हमारी किस्मत बदलने का भी टाइम आ रहा था, अगर हमने जैसी कंप्लेन कर दी, वो चीज हमसे और दूर हो जाएगी. इट इज बोथ. सो इसीलिए रोंडा बर्न ने लिखा है कि मैंने दोनों ट्राई करके देख लिया है. आई हैव ट्राइड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, और मैंने नेगेटिव थिंग्स भी काउंट करके देखी है, और उन सबको कह के आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करोगे, दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन लाइफ. So love and gratitude are very powerful frequencies, and these are the only ways to have abundance in life. So ये मॉल्बी जे बैबकॉक का quote है, better to lose count while naming your blessings.
मतलब वो कह रही हैं कि 10 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप अनगिनत लिखो, आप लूज कर लो काउंट की मैंने कितनी लिखी है, ठीक है। दैट इज व्हाट रादर देन काउंटिंग द ट्रबल्स, बट डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ओके, अगर इसको आप अमृत वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, तो परसों मैंने आपको ऑलरेडी ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस का एक वो मैसेज भिजवा दिया था कि 10,000 टाइम्स पावर होती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो। तो अपने आप का स्ट्रक्चर भी बनाओ। देखो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे हमको एक अच्छा इंसान भी बना रही हैं। हम बोलते रहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बट हम लेट टू बेड एंड लेट अर्ली टू राइज नहीं होना चाहिए। लेट टू बेड अर्ली टू राइज या लेट टू बेड एंड लेट टू राइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बहुत पावरफुल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं इफ वी आर लेट टू गेट अप फ्रॉम द बेड, late to get up from the bed and late to sleep in the night. So it's very important for us to go to bed on time. Okay, ये चीज हमको करनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। धीरे धीरे करो आप, कहते हैं ना स्मॉल विंस गिव्स यू अ बिग विन। सो स्टार्ट विद स्मॉल विंस। आप 12 बजे सोते हो, आप 11:30 कर दो उसको, बिल्कुल 11:15 पे अलार्म लगा दो, 11:30 पे लाइटें बंद। लाइट बंद करना जरूरी होता है क्योंकि तभी आपके हार्मोन्स जो स्लीपिंग हार्मोन्स होते हैं, मेलाटोनिन हमारा हार्मोन होता है जिससे हमको नींद आती है। मेलाटोनिन अगर नाइट लैम्प का भी लाइट होता है ना तो वो निकलता नहीं है हमारे ब्रेन से, पीनियल ग्लैंड से निकलता है वो, ठीक है। सो लिटिल बिट ऑफ अ साइंस नॉलेज दैट यू मे नीड टू नो। सो वो तभी निकलता है जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और वो लाइट का मतलब है अगर आपकी सेल फोन की लाइट है, आपके आईपैड की लाइट है, आपके लैपटॉप की लाइट है, या आपके टेलीविजन की लाइट है, या बल्ब ट्यूब लाइट या रीडिंग लैम्प और नाइट लैम्प की लाइट है, तब भी मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलता है। वो निकलेगा तभी व्हेन ऑल द लाइट्स आर शट। ओके, सो इसीलिए लाइट, कोई सी भी लाइट जो आपके फोन की लाइट तो पता नहीं हम बहुत टाइम तक यूज करते रहते हैं, उनको शट करो, ठीक है। आंखें बंद कर दो और उसके बाद अपने आप यू विल ड्रिफ्ट इनटू स्लीप। अपने आप को जो हमारा कल से प्रैक्टिस होगी द मैजिक रॉक, वो वाली प्रैक्टिस करके आप बस चुपचाप सो जाओ, ठीक है। ज्यादा जो 2 वर्ड्स हमको कीवर्ड्स बताएं, वेल्थ, सक्सेस, आप उनकी चैंटिंग मन में करते करते सो जाओ। जैसे आपने पूरा वो पत्थर पकड़ के रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, पूरे दिन भर का, वो जो हम कल सीखेंगे, कल वाला वही चैप्टर है। और उसके बाद वेल्थ सक्सेस या वेल्थ सक्सेस पीस, जस्ट द कीवर्ड्स, यू डोंट हैव टू स्पीक द सेंटेंस। ये आप मन में सोचते सोचते सो जाओ और उसका लिड बंद हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड का जैसे नींद आ जाएगी। अब ये ब्रू करेंगे, वेल्थ, सक्सेस एंड पीस, ये ब्रू करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, एंड यू विल सी दैट आपका योर एनवायरमेंटल, इन योर एनवायरमेंट यू विल सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। आपका पैसा आने लग जाएगा रुका हुआ, आपके बिजनेस में सक्सेस मिलने लग जाएगी। आपको कहाँ से वेल्थ आएगी पता नहीं, बट आएगी जरूर, ठीक है। सक्सेस आपको मिलने लग जाएगा, मतलब इतना सक्सेस मिलेगा, इंसेन सक्सेस मिलता है, ठीक है। और दिमाग बहुत पीसफुल और शांत होगा। सो दैट इज हाउ हु यू बिकम। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस, बिकॉज सो के उठते से ही आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो और रात को सोने के जिस पहले आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। इन दोनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। इन दोनों में जो अगर नेगेटिव थॉट्स डाल दिए ना, अब वो ब्रू करेगा। कई लोग हैं ऐसे सोते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और वही परेशानी में उनको नींद आ जाती है और वो सोचते हैं कि क्या है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स इतनी खराब आई हैं, क्या होगा, ये होगा। अब दैट मीन्स आपने सबकॉन्शियस में क्या सीड, कौन सा सीड डाला है कि मेडिकल रिपोर्ट्स खराब आई हैं, मुझे टेंशन हो रही है, या मुझे मेरे ऑफिस में ही हुआ था कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मुझे टेंशन हो रही है। एंड द जॉब विल गो, बिकॉज आपने वो सीड प्लान किया था। जो पेड़ लगाओगे वही तो पेड़ उगेगा, जो सीड डालोगे वो पेड़ उगेगा। तो इसीलिए हम सीड ही चेंज कर रहे हैं, है ना। तो सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इज काउंट माय ब्लेसिंग्स, एंड ऑफ कोर्स टुमारो वी विल स्टडी अबाउट। सो आज विल टेक वन थिंग एट अ टाइम। आज हम यही करते हैं, आज से काउंट माय ब्लेसिंग शुरू करना है, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग आफ्टर द सेशन। इमीडिएटली डू इट, और कल से सेशन पे आने के पहले, बिफोर यू स्टार्ट 6 o'clock सेशन, फॉर दोज हु आर इन इंडिया, फॉर दोज हु आर ओवरसीज, ऑफ कोर्स सो मेनी ऑफ यू ऑल आर ओवरसीज। सो आप अपने कंट्री के हिसाब से आप देख लेना, बट बिफोर सनराइज अगर आप लिखोगे तो आपके काउंट माय ब्लेसिंग्स की पावर 10x होती है। So that is how we have to do it, and that's all about this chapter. ये language यहाँ पे लिखी हुई है. So the book is shared. If you need the book, you can please share again. We will share the book PDF with you.
सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, ये लैंग्वेज होनी चाहिए। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, बिकॉज होना जरूरी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट, बिकॉज व्हाई, I'm truly grateful. So this is the language I write, but sometimes I bring a lot of freshness because हर महीने भी बुक दोबारा शुरू होती है, तो मैं कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। कभी I start with thank you only, thank you universe for this day, thank you universe for giving me this because this, thank you universe. So whichever way you want to write, it's all about changing the feelings in your heart, and more gratitude you think, more feelings you change in your heart. ठीक है, और कभी भी अपने मम्मी और पापा का थैंक यू करना मत भूलना। ठीक है, आपके 10 में से आप 1 पॉइंट मदर के लिए और 1 पॉइंट फादर के लिए जरूर रखो। ठीक है, या फिर अगर आपके कोई दादू थे, ग्रैंडफादर थे, उनके लिए 1 पॉइंट जरूर रखना। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मतलब जो भी जिनसे भी आपका कनेक्शन था, एंड इफ यू रियली रिमेंबर दैट दे डिड अ लॉट फॉर यू, सो यू हैव टू राइट दैट एज वेल। ओके, बट अलग अलग चीजें रोज लिखना। जैसे मम्मा के लिए आज जो मैंने बताया था ना, अगर आज आप लिख रहे हो फॉर कुकिंग सच नरिशिंग फूड फॉर मी एंड शी इज सच एन अमेजिंग कुक, ये फिर कल आप कुछ और सोचना। तो इस तरह से ही रौंडा ने लिखा है कि रोज हम 28 डेज तक मतलब करते रहेंगे ये वाली प्रैक्टिस, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, एंड इमिजिएटली आप उसका इफेक्ट देखोगे अपने आउटर एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। सो इसमें और कुछ नहीं है। प्रिया, वुड यू वांट टू एक्सप्लेन? इसमें लिखा हुआ है कल की प्रैक्टिस आज ही पढ़ लें, तो आप वैसे ही बता दो। यस मैम, श्योर। सो कल के लिए वी हैव टू गेट अ छोटा सा रॉक, छोटा सा पत्थर। इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो हमारी मुट्ठी में आराम से आ जाए, बंद हो जाए, हम उसको लेके मुट्ठी बंद कर ले, और उसके एजेस स्मूथ हो ताकि वो कहीं चुभे ना हमारे हाथ में। तो कल से लाइफ लॉन्ग हमारे पास वो पत्थर होना चाहिए। रात को सोते टाइम हम उस पत्थर को अपने पास रखकर फिर उसके लिए वो मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करेंगे जो मैम कल बताएंगी हमें। तो उस तरह से तो आज ही हम लोग सारे के सारे पत्थर और ढूंढ कर रख लेंगे, और हम लोगों के पास जिनके पास ऑलरेडी है वो तो बहुत पावरफुल बन चुका, वही काम करेगा। और जो भी हम लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं, हम ढूंढ लेंगे कि एक छोटा सा पत्थर अपने पास ढूंढ लेंगे। गार्डन में छोटी सी बजरी हो सकती है आपके हाथ में, लेकिन वो रियल पत्थर होना चाहिए। वी हैव टू लाइक मेक इट श्योर दैट इट शुड बी द रियल पत्थर, the real stone that is available in the nature. Yeah, so you'll have to repeat the same in English, as there's some of my friends from South India who don't speak Hindi. So for tomorrow's practice, we'll have to find a small rock, a small pebble sort of thing that should have that you will have every day, every night. You have to have that thing in the fist of your hand, so that it doesn't it comes in your hand very smoothly, and the edges of the rock should be very smooth, so that आपको वो चुभे ना, it doesn't hurt you, because you are going to sleep with the drag rock, है ना? इसलिए we have to do that. And yeah, from all those who we have, the older participants, all of us, we already have that rock, so we can keep continuing doing the practice with that rock only. And the newer one, we all can find one, and that can be a small rock that roadside may we get chota bajri type of things, chota pebbles or small rock, and it should be a natural, real stone, not the artificial gemstone sort of thing. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much, Priya. Thank you. So we don't need to read this thing only, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया हमको. So that is what we need to do. And we are reading about chapter number 10, which is called success, how to get success in our life. And yesterday we had read about someone's experience, a gentleman who became very rich. बहुत अमीर हो गए थे वो, लेकिन वो लोगों का पैसा चोरी करते थे, उससे वो अमीर हुए थे। मतलब उन्होंने अपना करियर की स्टार्टिंग की थी पिक पॉकेटिंग से, यानी कि लोगों के जेब काटना और उनके वॉलेट में से पैसे चुराने से, और धीरे धीरे करके वो मिलियनेयर बन गए ऐसे पैसे चुरा चुरा के। लेकिन ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन, उनके अंदर का जो ह्यूमन था ना, वो बार बार उनको गिल्ट कॉम्प्लेक्स दे रहा था और फियर दे रहा था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, जो वहां की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड होती है, कि वो मुझे पकड़ लेगी। तो इस डर में वो रहते थे पूरे टाइम, और इस करके उस डर के कारण एक दिन कहते हैं ना कि योर वॉट एवर यू होल्ड इन योर हेड यू सी इन योर एनवायरमेंट। तो जो आप दिमाग में रखते हो वो आपको सामने नजर आ जाता है। तो उनके दिमाग में तो फियर था कि मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे हमने सीक्रेट मूवी में भी पढ़ा था ना कि ये बंदा जो था उसने बहुत अच्छी नई साइकिल ली थी, तो उसको हमेशा लगता था कि
मेरी साइकिल चोरी तो नहीं हो जाएगी। तो वो उसको चेन से लॉक करके पोल से जाता था, जहां पे भी वो जा रहा होता था काम की जगह पे, तो वो पोल से उसको चेन करके लॉक लगा के ताला लगा के जाता था, और उसको बार बार आके चेक करता था ताले को कि लगा तो हुआ है ना, किसी ने खोला तो नहीं है ना, मतलब उसके दिमाग में इतना फियर रहता था। और एक दिन कोई उसकी साइकिल उठा के ले गया, वो लॉक करके गया था, क्योंकि उसी ने तो मैनिफेस्ट किया ना अपनी साइकिल को चोरी होना, क्योंकि जिस भी चीज के उसी तरह से ये जो पर्सन था जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं सारे इस बुक में। आई मीन दे आर नॉट लाइक इमेजिनरी और मेक बिलीव, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये जो पर्सन था उसको ये फियर था कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैंने इतने लोगों का जेब चुराया है, तो मतलब उनके पैसा चुराया है। तो फाइनली उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाला, और जब जेल का सेंटेंस वो सर्व करके बाहर निकला तो उसने प्रॉपर अपनी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लिया, और फिर उसके बाद फाइनली वो बिल्कुल ठीक हो गया, और उसने अच्छा करियर, सक्सेसफुल करियर शुरू किया, क्योंकि उसके दिमाग से चला गया। तो डॉक्टर मर्फी हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी 2 नंबर के तरीके से पैसा नहीं कमाना है, और लाइफ में जब आपको सक्सेसफुल बनना है तो एंश्योर कि आपकी सेहत भी अच्छी हो, आपके अच्छे दोस्त भी हों, आपकी फैमिली भी यूनाइटेड है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइसोलेशन में कि बहुत सक्सेसफुल है लेकिन रातों को नींद नहीं आती है, और पैसे पैसे का कंजूसी चल रही है, मतलब बिल्कुल पैसा है लेकिन खर्च नहीं करना है, ठीक है। बट ये फिर अगर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्टैग्नेशन आ जाता है, और हमको पता है कि जब कोई चीज स्टैग्नेट होती है, जब रुका हुआ पानी कैसा होता है, उसमें से बदबू आती है, फिर उसमें काई जमती है, फिर उसमें मच्छर और कीड़े आते हैं, ठीक है। स्टैग्नेशन इज इक्वल टू दिस। चाहे स्टैग्नेशन लाइफ में अगर आप अपने आप को भी नहीं ग्रो कर रहे हो तो स्टैग्नेशन आ जाता है, जस्ट लाइक दैट स्टैग्नेटेड वाटर। ओके, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। सो इसीलिए मनी हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए, खर्चा करेंगे तभी वो वापस आएगा, एंड दिस इज लॉ, this is the law of the universe, that money should circulate, it should not stay at one place. ओके, लक्ष्मी चंचल ही अच्छी लगती है, चंचल ही रखना चाहिए उसको, जाएगी तभी वापस आती है ना। तो इस तरह से, तो अब हम उसी को, वो लास्ट पैराग्राफ था जो हमने कल किया, अब हम आगे उसका पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देयर वॉज एन आर्टिकल पब्लिश से। हाँ जी प्रिया, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving a opportunity. There was an article published some years ago about Flagler, an oil magnate. He admitted that the secret of his success was his ability to see a project in its completion. For instance, in his case, he closed his eyes, imagined a big oil industry, saw trains running on tracks, heard whistles blowing, and saw smoke. Having seen and felt the fulfillment of his prayers, his subconscious mind brought about its realization. If you imagine an objective clearly, you will be provided with the necessities in ways you know not of through the wonder working power of your subconscious mind. हाँ, ये एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इस पर्सन का नाम था फ्लैगलर। नाउ दिस पर्सन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, इसके बारे में मैंने कहीं और भी पढ़ा हुआ है अबाउट दिस पर्सन। ये अपने टाइम के ऑयल मैग्नेट थे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, और इनकी खूब सारी ऑयलिंग की माइंस चलती थी, ठीक है। ये बाद में बने, पहले वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, मतलब नॉर्मल इंसान थे, उनकी जिंदगी में जीरो सक्सेस थी। इन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के ये क्लाइंट, या मतलब जो भी पेशेंट या जो भी बोले हम, तो उनके क्लाइंट थे, और इन्होंने अपनी सक्सेस जिंदगी में विजुअलाइजेशन यूज करके, इमेजिनेशन यूज करके की। तो वो क्या इमेजिन करते थे, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके वो देखते थे कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है, मतलब खूब ऑयल निकला, वो चीयर, मतलब खुशी देखते थे अपने एम्प्लॉयज के चेहरे के ऊपर, और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो आंखें बंद करके इमेजिन करते थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है। और वहां पे देखते थे कि खूब बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, उनमें ऑयल भरा जा रहा है,
और ट्रेन्स उसको ले लेके जा रही हैं ह्यूज कंटेनर्स को, ठीक है। द ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक्स और वो विसिल ब्लो होती है ना, जैसे सारा जब जैसी कंटेनर भर जाता है तो विसिल ब्लो करते थे कि ओके टाइम की अब ट्रेन को मतलब ये कैरी अवे करना है, और फिर देखते थे उस ट्रेन की स्मोक निकल रही है और वो फाइनली सारी कंटेनर्स इतना सारा ऑयल लेके पूरी की पूरी ट्रेन पे बस उन्हीं की इंडस्ट्री उन्हीं की माइनिंग का ऑयल भरा हुआ है। और इस तरह से वो देखते थे अपने बार बार अपने दिमाग में ये डाल डाल के, और इनके जितने भी सब्जेक्ट्स थे ये दिन में 3 से 4 बार ऐसे इमेजिनेशन करते थे। एंड ही सॉ फाइनली रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, दैट मीन्स ये जो बार बार इमेजिन करते थे ये फुलफिल हो गया। और फिर इसीलिए बाद में उन्होंने ये बताया जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, इफ यू इमेजिन एन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, जैसे आपको आंखों के सामने बिल्कुल वो होता हुआ नजर आ गया है और उसको बार बार आप रिवाइंड करके रन थ्रू कर रहे हो वो इमेज, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बिलीव करने लग जाता है, चाहे वो कितना भी फेक हो। ऑब्वियसली इन पर्सन के लिए तो बिल्कुल फेक था, ही वाज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ही डिड नॉट हैव एनी बिजनेस, ही डिड नॉट हैव एनी मनी, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली इमेजिनिंग अबाउट दिस होल सीन दैट खूब बड़े से माइनिंग है और माइन है, उसमें से ऑयल निकल रहा है, कंटेनर्स में भर रहा है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सामने ट्रेन खड़ी है उस पर लोडिंग हो रही है, फिर वो विसिल ब्लो हो रही है, वो ट्रेन जा रही है, फिर ट्रेन का स्मोक निकल रहा है। उस टाइम ट्रेन का स्मोक निकलता था, आजकल ट्रेन का स्मोक नहीं निकलता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है। बट इतनी विविडली वो इमेजिन करते थे सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड फुलफिलमेंट अपने ड्रीम का। एंड देन फाइनली वो चीज ऑब्जेक्टिवली हो गई, सब्जेक्टिवली अपने दिमाग में रोज सोचते थे, सबकॉन्शियस माइंड ने वो बिलीव कर लिया, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि दैट कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ, वेल्थ सक्सेस पीस हैप्पीनेस, वेल्थ सक्सेस प्रोस्पेरिटी, जो आपको करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सही और झूठ नहीं पता होता, मतलब ट्रू एंड फॉल्स नहीं पता होता। सो व्हाटएवर यू से टू योर सबकॉन्शियस माइंड इट स्टार्ट्स बिलीविंग, okay, and you will see the outward reality changing and the thing that you're constantly imagining and visualizing happening in your life very soon, okay। So इसीलिए लिखा हुआ है if you imagine an objective clearly you will be provided with the necessities, universe will give you necessities, you don't have to worry, don't get into how and the other technicalities, ये मत सोचो कैसे आएगा कहाँ से आएगा, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। अगर आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो, जो चीज आपको वाकई देखनी है वो ट्रू हो जाती है। एंड कैसे होगी पता नहीं, इसीलिए इन्होंने भी लिखा हुआ है इन वेज यू नो नॉट ऑफ, यू डोंट नो अबाउट हाउ इट्स गोना हैपन थ्रू द वंडर वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब का नाम ही है ये, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज उसके दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। हाँ जी। बट आई वॉन्ट टू सी वन थिंग अगेन, अगर आप बार बार ये सोचते हो ना मैं कितनी मोटी हूँ, मेरे हिप्स कितने ब्रॉड है, वो मेरा पेट भी निकलने लगा है, मुझ पे ड्रेस सूट नहीं करती है, मेरे एकदम से ये ड्रेस टाइट हो जाती है, मेरे थाइज कितने हैवी है, वो भी आप बार बार सबकॉन्शियस को बोल रहे हो, ठीक है, तो वो भी ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। Yeah. In considering the 3 steps to success, you must never forget the underlying power of the creative forces of your subconscious mind. This is the energy in back of all steps in any plan of success. Your thought is creative. Thought fused with feeling becomes a subjective faith or belief. And according to your belief, is it done unto you, Matt? Yeah, this is a quote from the Bible, Matt 9:29. So these are quotes from the Bible because he was a Christian pastor. Dr. Murphy was a priest. He was a pastor in the church for many number of years. And then after that, he left the church and then he had written this book. So that's why we see all beautiful quotes coming in from Bible. And उसमें भी ये लिखा हुआ है, according to your belief, it is done unto you. So always remember that the subconscious mind is creative. And hence in chapter number 1, इन्होंने ये लिखा था that your thoughts and feelings are creative because they are constantly creating. Okay, so it's very important for us to filter the thoughts and feelings. और अगर नेगेटिव लग रहा है,
आपको वो नहीं देखना है रियलिटी में, यू इमीडिएटली नीड टू गिव द ऑपोजिट कमांड, गिव द ऑपोजिट कमांड। जैसे अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग, दिस पर्सन बिहेव्स लाइक दिस विथ मी और व्हाटएवर, इमीडिएटली थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, जस्ट द ऑपोजिट थॉट। ओके, या फिर अगर आप सोच रहे हो डर्थ ऑफ मनी हो रहा है, thank you for all the money I have, thank you for all the money I have, immediately change करो। don't plant that seed of कि मेरे पास पैसे नहीं है, my weight is not losing, I'm becoming a fat person, I can't control my food। There's so many people come and say I can't control my food, I feel hungry, I can't do this, I can't have this, मुझसे पानी नहीं पिया जाता। So don't say all those things, keep telling yourself, I'm easily able to drink 3 liters of water on a daily basis, very easily, all this comes naturally to me. My life is so easy and effortless. Everything comes to me easily and effortlessly, so all of that, I am appreciated. I'm whole, healed, complete. My organs are working perfectly. So your self-talk will determine the outcome of your life. That's very clear. So इसीलिए लिखा हुआ है that thought fused with feeling, okay, becomes a subjective faith or belief. So that's very, very important, that you should have excitement and joy in your life. You have to create it. See, everybody creates it. मतलब joy and excitement अगर आपको create करना आ गया ना, that means you've had life. You know how it works. Otherwise, हम हमेशा environment से joy and excitement expect करते हैं और determine होता है हमारा. Our joy should not depend on the environment. Of course, that will add to it. Obviously, इसीलिए कहते हैं ना, happiness is not the reason. I mean, like, smile is not the reason of happiness. It is the cause of happiness. यही कहा जाता है ना, अगर आप स्माइल करते हो तो इट्स नॉट द रीजन ऑफ हैप्पीनेस। खुश हो इसलिए स्माइल कर रहे हो इसलिए नहीं, स्माइल किया है ना, that will become the reason for happiness, that now आपने अपना emotion elevate कर लिया and you will see the outward reality that सारी खुशियों वाली चीजें आपके environment में आएंगी। इसीलिए अपने mindset को, human mind is extremely controllable, very very fluid, उसको control कर लो, time से control कर लो, before that seed turns into a big jungle. Don't let that happen. Okay, the moment a negative thought come, आपको ये पूरे time aware रहो, तभी मैं ये बार बार repeat करती हूँ, so that at least you remember my voice, whenever the negative thought comes, immediately don't, that's a seed you're planting, okay? Now it will become a huge tree and it will spread, it will propagate, so immediately cut it off. कहते हैं ना nip in the bud, वो bud form में है, वहीं पे आप उसको हटा दो, वहीं पे काट दो, उसको बड़ा मत होने दो. So yeah, we'll go further. Yeah, knowledge of a mighty force in you, which is capable of bringing to pass all your desires, give you confidence and a sense of peace. Whatever your field of action may be, you should learn the laws of your subconscious mind. When you know how to apply the powers of your mind, and when you are expressing yourself fully and giving of your talents to others, you are on the sure path to true success. If you are about God's business or any part of it, God by his very nature is for you. So who can be against you? With this understanding, there is no power in heaven or on earth to withhold success from you. Yeah, cute paragraph, छोटा सा paragraph है ये वाला, इसमें ये समझाया है that now you guys are empowered, for us, we are all empowered. अब हमें पता है कि हमारे अंदर एक बहुत strong power है और हम अपनी life जैसे चाहते हैं वैसे अब create कर पाएंगे, ठीक है? ये knowledge itself बहुत अच्छी है। और जो हम अपना, जो भी हमारा vocation है, जो भी हम करते हैं, like हमारा प्रोफेशन है या हम होम मेकर हैं, हम अपने लोगों की जिंदगी कैसे एनहांस कर रहे हैं अपनी वजह से। जैसे अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो किस तरह से अपने घर का ध्यान रख रही हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको वो स्ट्रेंथ दे रही हैं, उनको पावरफुल फील करा रही हैं, मे बी ये वाली टीचिंग्स बता के, या फिर अपने नेबर्स के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, उन्होंने बहुत अच्छे जिम फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, वो सबको एनकरेज कर रही हैं कि आप भी जिम ज्वाइन करो या मॉर्निंग वॉक करो या अच्छे से खाना खाओ, और बहुत अच्छा उन्होंने घर का और बाहर का माहौल बनाया हुआ है,
तो इस तरह की चीजें, या अपने नेबर्स को वो कॉफी पे बुला लेती हैं कभी कभी, दैट कम लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। तो आप अपने आप को लोगों के लिए यूज कर रहे हो, है ना। you're not cooped up and you're not staying in your house and thinking मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों उनको encourage करूं, so and you're smiling at everybody, so that means आप वो सब भी तो अपने creative powers और अपने talents को लोगों के लिए use कर रहे हो ना, because you have a very pleasant demeanor and you're using your personality to affect others as well, right? So as a homemaker आप अच्छा कर रहे हो। जो लोग बाहर जाते हैं घर के, दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस एंड करियर्स, आप करियर के थ्रू अपने लोगों के साथ इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखो, उनको इतना अच्छा काम करके दो दैट लोगों को लगे दैट वाह मजा आ गया इनसे बात करके या डील करके और व्हाटएवर, so this is what it is. So यही है that now realize that you have a power, you're not dependent on anyone. आपको बहुत पैसा चाहिए, आप उसको क्रिएट करो। आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, आप उसको क्रिएट करो। आपको बहुत अच्छी लोकेलिटी में घर खरीदना है, create it. Okay, so have that power in you. This is what Dr. Joseph Murphy is saying, that don't think that because you are God and God's business is only your growth and abundance and success, and that's totally, you're backed up by that force of God. So always go ahead and do whatever in life you want to do, create whatever you want to create in your life. Okay, now we study about a beautiful experience again, which is a real life experience है किसी का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ जी प्रिया। Yeah. How he made his dream come true. A movie actor told me that he had very little education, but he had a dream as a boy of becoming a successful movie actor. Out in the field, mowing hay, driving the cows home, or even when milking them, he said, I would constantly imagine I saw my name in big lights at a large theater. I kept this up for years until finally I ran away from home. I got extra jobs in the motion picture field, and the day finally came when I saw my name is great big lights as I did when I was a boy. Then he added, I know the power of sustained imagination to bring success. Yeah. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। इमेजिन ये पर्सन, ये पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन उसको एक दिन था कि मुझे बहुत सक्सेसफुल पिक्चरों में काम करना है। उसने बचपन में देखी होगी तो इसको लगा कि मुझे भी हीरो बनना है पिक्चर का, ठीक है। और तो वो जब अपने गाय को वो करने जाता था, मतलब काउज लेके अपनी, सो जब वो जा रहा था अपने काउज के साथ में उनका दूध निकाल रहा था, then he would actually think in his mind that I would imagine that I saw my name in the big lights at a large theater. मतलब कोई थिएटर है बहुत बड़ा, जैसे ब्रॉडवेज है, वहां पे उस पे चमकता हुआ लाइट के साथ उनका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उन्होंने वो वाला नाम और वो वाली लाइट बहुत टाइम तक, फॉर इयर्स, बहुत सालों तक अपने दिमाग में रखी कि मेरा नाम बड़े बड़े थिएटर्स में बड़ी बड़ी लाइटों पे, बोर्ड्स पे लिखा हुआ है। और फाइनली वो निकले अपने घर से, अपने गांव से शहर गए, और वहां पे जाके उन्होंने पिक्चरों में मतलब वो वाली मूवीज के एक्स्ट्रास जो रोल करते हैं ना, जो साइड वाले जॉब्स होते हैं, क्लैप बॉय और ये सब करना शुरू किया, एंड एक्स्ट्रा जॉब्स किए फ्रॉम द मोशन पिक्चर फील्ड। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब उन्होंने अपना नाम को देखा एग्जैक्टली उसी तरीके से, बड़े बड़े लाइट का लिखा हुआ, जो वो देख रहे थे शुरू से। ओके, फिर उनको पता लगा that I know the power of sustained imagination to bring success. Sustained imagination. आपको रोज इमेजिन करना है, चाहे आप किसी दिन मूड बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपको वाकई चाहिए ना तो आप शिद्दत से ही करो, है ना, वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है, अगर आप कोई भी चीज बहुत शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसको आपके पास लाने में लग जाती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट, इफ एनी ऑफ यू नो यू कैन प्लीज शेयर, ठीक है। वो शिद्दत से तो सारी कायनात, मतलब सारा यूनिवर्स उसको आपके पास ऑर्केस्ट्रेट करके लेके आता है। तो आप शिद्दत से चाहो, शिद्दत से कोई चीज चाहिए तो वो आप भूल कैसे सकते हो? आपकी ड्रीम, वो आपका सपना है ना, कि आपको बहुत बड़े थिएटर पे अपना नाम देखना है, या आपको बहुत बड़े अवार्ड शो में, सपोज आप मतलब सिंगर हो तो आपको ग्रैमीज में अवार्ड चाहिए, तो आप अपने आप को देखो वहां पे कि आप ग्रैमी रिसीव कर रहे हो, अच्छे से देखो ग्रैमी अवार्ड दिखता कैसा है, ठीक है। और
वर्षा ने हमको ऑस्कर्स वगैरह का म्यूजिक, आई मीन जस्ट लिसन टू दैट म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स का वो म्यूजिक है, वो इटसेल्फ बहुत दैट सेंस ऑफ सक्सेस लेके आता है दिमाग में. हैव यू हर्ड जो वर्षा ने भेजा था? वर्षा, मे बी इफ यू आर देयर यू कैन सेंड इट अगेन. शी हैड सेंड इट अ फ्यू डेज अगो, जब उनके बेटे का, रौनक का, जिस दिन वो डॉक्टर्स क्लिनिक का इनॉग्रेशन था बेटे का, तो उस दिन उन्होंने भेजा था. और उसके बाद एक सॉन्ग भी भेजा था जो वो रॉकी सुनती का, थी, है ना? या वो सिल्वेस्टर स्टैलोन का सॉन्ग भेजा था. हाँ, तो वो हम दोबारा पोस्ट करेंगे. वो बहुत विनिंग उनमें ना कुछ है ना, देयर इज दैट वाइब ऑफ इट इज सो विनिंग. मेरे भी एंड द गूज़बम्प्स स्टोरी हो गए थे सेम्स वो ऑफ सुन के. अर्नल्ड मैम. ये अर्नल्ड की स्टोरी लग रही है जो बता रहे हैं ना, हाँ जो मर्फी. हाँ, उन्हीं की. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मुझे जिम कैरी की लग रही है, पर जिम कैरी ने तो अपने आप को चेक लिखा था 100 या मिलियन जिम का. कैरी ने चेक लिखा था, पर अर्नल्ड तो वो स्वीडन से आके ना हाँ बहुत ऐसे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे. एंड ही हाँ ऑलवेज, वो तो यूं भी बोला था कि तू एक्टर कैसे बनेगा, तेरी शक्ल तो है नहीं एक्टर बनने की. लेकिन वो हाँ मिस्टर इंडिया रहे. और एक्टिंग तो आर्नल्ड की वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो वही वाला जैसे अपने, इनका जो चार्म है ना, वो बॉडी दिखाकर एंड आई वांट इट बैक, एंड वो वाला जो उनका एटीट्यूड है, दैट हाँ गॉट मी दिस. और वो कहते हैं कि आई यूज्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और मैं बोलता था, उसको बोलते थे कि तुम इतना ज्यादा क्यों करते हो, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. he used to say, who said I will get that. He used to live that moment. जो वो इतनी बार जो मिस्टर यूनिवर्स बने, वो उस मोमेंट को रहते थे. he used to live that moment. और उसके बाद तो कहाँ ही ना पहुंच गए वो कैलिफोर्निया हाँ. के गवर्नर तक रहे इतने सालों तक. या एंड ऑल्सो ही वॉज लाइक वो जो वेट लिफ्टिंग और वो वाली होती है, उसमें भी ही स्टूड फर्स्ट इन मिस्टर इंडिया. यूनिवर्स है ना वो, उसमें मिस्टर यूनिवर्स थे वो कितने या सालों तक, बैक टू बैक. या सो दिस इज हाउ पीपल बिकम. जिम कैरी भी यही थे, उन्होंने अपने आप को 100 मिलियन चेक लिखा हुआ था, डॉलर्स का चेक लिखा हुआ था, और वो रोज देखते थे कि वो बन गए, मतलब ही इज बिकम अ बिग स्टार. सो मेनी हैव बिकम वेरी बिग लाइक दैट जस्ट बाय विजुअलाइजेशन, ड्रीमिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, फीलिंग, उन सारे टूल्स को यूज कर करके. तो यही बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है इनका, दैट बट सस्टेन्ड इमेजिनेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये जरूरी होता है. सो डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट. यू शुड नॉट गेट सो बिजी ड्यूरिंग योर डे दैट यू फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स. यू शुड नेवर डू दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कल हमने लिखी है ना ड्रीम लिस्ट, और जो आपके उसमें से प्राइमरी ड्रीम्स हैं उनको तो बिल्कुल मत भूलो, वो तो करना ही करना है. And keep thinking, talking, imagining, listening about them, and you will see, and give a lot of love to that dream instead of thinking of that feeling of lack. Okay, be in an excitement and joy. That's very very important, and you will see that your dreams will come true, no matter वो कितनी impossible आपको अभी लग रही है. इनफैक्ट कभी कभी तो टाइम रियलिटी इतनी कम होती है, मतलब जो हमने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि वो जो फीमेल थी उसको शादी करनी थी when she was 75 year old. 70s में उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला, कैन यू बिलीव इट? और 2 हफ्ते लगे, मतलब 2 weeks पहले ही उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया था कि आई हैव अ हस्बैंड एंड वी आर रियली ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड डॉक्टर माफी ने लिखा कि 2 हफ्ते उसने इमेजिनेशन किया, और वो एक मतलब कोई अपनी मेडिसिन या कुछ लेने के लिए फार्मेसी के स्टोर पे गई, तो वहां पे फार्मेसी का ओनर आया हुआ था उस स्टोर का. एंड दे मेट एंड दे डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर ईच अदर, एंड ही वाज आल्सो सिंगल, लाइक उनका स्पाउस की डेथ हो गई थी, इनकी भी स्पाउस की डेथ हो गई थी, और इनके बच्चे बड़े हो गए थे, तो अकेली रह रही थी, तो इनको लग रहा था पार्टनर की नीड, और दोनों बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास. इनफैक्ट डॉक्टर जोसेफ मर्फी जब ये बुक लिख रहे थे तो मतलब जब उन्होंने बाद में उससे पूछा तो बोल रहे थे दे वर ऑन देयर हनीमून टू यूरोप, क्योंकि वो यूके में रहते थे, तो दे वर ऑन देयर हनीमून, दैट ओल्ड कपल. सो लाइक हाउ ब्यूटिफुली, मतलब 2 हफ्ते में उनका ड्रीम रियलाइज हुआ. कभी कभी लोगों का 4-4 दिन में भी हुआ है. मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी विजुअलाइजेशन है उतनी जल्दी रिजल्ट आता है. लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं. पीपल जस्ट विजुअलाइज, सपोज किसी को ब्लड शुगर है तो उसमें HbA1c टेस्ट है, उसमें लिखा हुआ है सपोज 8.1, तो विजुअलाइजेशन से आपने 8.1 को काट के आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी रिपोर्ट है, आपका नाम है, और 8.1 को आपने व्हाइटनर लगा के इरेज करके आपने उसकी जगह 6.2 कर दिया है.
है ना। तो 6.2 वैसे प्री डायबिटिक रेंज में आता है, बट अभी आपने 6.2 आपको बिलीवेबल लग रहा है, तो वो 8 पॉइंट्स उससे आपने 6.2 कर दिया। अब वो आपकी रिपोर्ट है, आप बार बार उसको देख रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो, एंड यू आर इमेजिनिंग दैट योर डॉक्टर्स टेलिंग यू कि अरे ये तो आपका बहुत ड्रास्टिकली ठीक हो गया, अब आपकी दवाइयां हम बंद कर देते हैं, अभी आप सिर्फ एक मेटफॉर्मिन ले लो, और इस तरह से फील दैट डॉक्टर्स हैंडशेक एंड और हियर हिज वॉइस कांग्रेचुलेटिंग यू, like all of that. So that is how the dreams get realized. और इसी तरह से ये वाला भी इस पर्सन का हुआ है. So yeah, that's all we'll read today. कल एक बहुत beautiful experience है फिर से. His dream pharmacy became a reality. कि किस तरह उनका ये हो गया, तो हम कल पढ़ेंगे. खूब सारी, ये पूरी किताब में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं, और ये सारे इनके डॉक्टर मॉफी के सब्जेक्ट्स होते थे. मतलब वो उस वक्त ऑफ कोर्स लाइक ऑनलाइन तो कुछ ऐसा, तो वो जगह जगह ट्रैवल करते थे टू होल्ड सेमिनार्स, और उसमें ये संडे सेमिनार्स करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वो मोर फ्रीयर दैट डे. सो संडे सेमिनार्स ये अलग अलग कंट्रीज में करते थे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इनके आते थे, और फिर वो उनको चिट्ठियों से टेलीग्राम से उस टाइम बताते थे, बिकॉज ये सारी 1960s और 70s की बात है, या उससे भी पहले. तो वो तब और उनको बताते थे, तो उनके सबके एनेक्डोट्स लाइक लिटिल लिटिल एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में इस पूरी किताब में भरे हुए हैं. तो ये सारे उनके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम, एंड दैट द सेंस ऑफ पावर दैट इट गिव्स टू अस, दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, व्हिच इज द ब्यूटीफुल थिंग हियर. So yeah, thank you so much, Priya. Thank you for reading for us. Thank you. And for reading so nicely. Yeah, thank you so much for. Yeah. Anyone wants to share any experience? Yeah, I want to share one thing. Actually, मेरे को बहुत टाइम से ना कुछ challenges I was facing health wise, and मैम is already aware. तो बहुत सारे हेल्थ challenges मुझे हो रहे थे, लाइक विटामिन डी की कमी हो गई थी, B12 की कमी हो गई थी, एंड कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सब मुझे बहुत सारे challenges हुए थे. देन मैम गाइडेड मी नॉट टू से दिस एज अ प्रॉब्लम, और उन चीजों को एनर्जी मत दो. और देन फिर आई स्टार्टेड डूइंग द ग्रेटिट्यूड जर्नी, और उसके थ्रू मैंने जैसे जैसे मैम ने गाइड किया इस सेशन में आप सबके साथ ही रह के, जैसे जैसे मैम ने 100% उसको मैंने 100% मान के कि मेरी मेंटर बोल रही है, मतलब कि अगर वो बोलेंगे कि उल्टे लटक जाओ तो मेरे को उल्टे भी लटकने के लिए मैं मंजूर थी. और मतलब मैम ने अगर ये बोला है तो मैं इवन खाली खुद से ही नहीं, इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स वगैरह, उनकी आके भी मैं बोलती थी कि आज मैम ने ये सिखाया है, आज मैम ने ये बोला है. एंड माय मॉम आल्सो यूज्ड टू लिसन समटाइम्स. तो उसके बाद मेरी लाइफ इतना ड्रास्टिकली चेंज हुई है. वट एवर आई ड्रीम्स ऑफ, मतलब बहुत सारी मेरी ड्रीम्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू टू द मेंटर. एंड सारे ही जितने लोग, सब लोग हैं, आप सबने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. और आप सब लोग जो कि अपने पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक कि आपको आपके पास पार्टनर की मतलब प्रॉब्लम होगी या कुछ है. अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो भी करते हैं, वट एवर इज योर ड्रीम्स, आपके पास लाइनें लग जाएंगी, आपके पास ऑप्शंस के लिए लाइक स्वयंवर करना पड़ सकता है आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हैं. तो आप सभी जो भी ड्रीम है आपकी, चाहे वो एक मूवी बनाने की है, मैं आज अनाउंस करना चाह रही हूँ कि हम अपने एसएजी ग्रुप की एक मूवी भी क्रिएट करना चाह रहे हैं. सो वी आर प्लानिंग इन अ प्लानिंग ऑफ दैट, और मैम की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग वो मूवी प्लान करेंगे. आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा. वट एवर, मतलब आप जो भी उसमें करना चाहते हैं, दैट इज लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. और दूसरा, हमारा न्यूज़ चैनल में भी आने वाला है, तो विद द मैम्स ब्लेसिंग एंड एवरीवन्स ब्लेसिंग हम लोग एक चैनल में अभी आने वाले हैं. तो मैं मैम को उसमें लेके जाऊंगी विद योर ऑल ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच.